morning class. In our previous class, we have learned about the angles and have done two questions of the exercise 4.3. Now we are going to take the third question. The third question is asking us, draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common. We have to draw a diagram according to the given point. So I am solving the question 3 part A. In question 3 part A, we have asked to draw one point in common. ठीक है, two angles such that they have one point in common. So this is the first line, let's say, and this is the second line. Don't forget to put the arrow mark. ठीक है, that will denote that you are using a ray, and angle is made by using a ray. So we have to draw one point in common. One point in common means जो हमारी तीनों रेज, जो भी दो रेज हम ड्रॉ करेंगे उनमें एक पॉइंट विल बी कॉमन. ओके, so let us name this first. Let's say this is point A, this is point B, and this is point C. So this point O is common in OA, and point O is common in angle OAB and angle OCOB. ठीक है, this part is common between these two rays. So point O is common. Point O is common in angle O. Sorry, यहाँ पे आपको O A पहले लिखना है. ठीक है, AOB and angle COB. This is point O is common between these two angles. Okay. Now we are taking the second part. In second part of the question, we have to draw a rough diagram in which 2 points are in common. 2 points we have to draw in the ray that are common. So let us draw it. Okay. 2 points in common. यहाँ पे बहुत सारी लाइन दिख रही है, you will get confused. We'll just take 2 lines. We are taking here 2 lines. Let this be the first line and let this be the second line. Okay. Mark the arrows like this. Name the points. O, let's say this is point P, let's say this is point Q, and this is point R. In the question we have asked that we have to draw 2 points in common. 2 points in common. So in this part you can see हमें 2 पॉइंट को कॉमन दिखाना है. तो यहाँ पे जो पॉइंट O है और पॉइंट अगर हम एंगल ROQ को लें, ठीक है, ROQ को लें और एंगल POQ को लें एंड एंगल POQ, इन दोनों पॉइंट्स आप जब इन एंगल्स को कंसीडर करोगे तो ROQ लोगे तो ये वाला पार्ट आ रहा है, POQ लोगे तो दिस पार्ट इज कमिंग. तो इन दोनों एंगल्स में कौन से दो पार्ट्स कॉमन आ रहे हैं, OQ और OQ. तो दो कॉमन पॉइंट्स क्या हो गए, O और Q. ठीक है, सो कॉमन पॉइंट्स आर
O एंड Q। इस क्वेश्चन में हमें एक कॉमन पॉइंट बताना था और फर्स्ट पार्ट में हमें बेटा एक कॉमन पॉइंट बताना था। आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू नेम वन कॉमन पॉइंट। तो पहला कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन जो है वो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें दो कॉमन पॉइंट्स बताने थे, तो ये दो कॉमन पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट कॉमन जो है वो O हो गया, सेकंड पॉइंट जो कॉमन है वो Q हो गया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पूछा गया था, तो हमने एक O को लिया और ठीक है कॉमन पॉइंट बना दिया O A O B, ठीक है। एक इस एंगल में भी आ रहा है और जब हमने COB को दिया यानी ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? O इज द कॉमन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे दो कॉमन पॉइंट्स पूछा गया है, तो हमने दो एंगल्स लिए, एंगल ROQ ये वाला पार्ट हो गया और एंगल POQ इज दिस पार्ट, ठीक है। और दोनों में दो कॉमन पॉइंट्स क्या है? OQ इसमें भी है, OQ इसमें भी है। So I hope you have understood the difference between the two questions. First question में हमें we have to mark only one common point, and in second question we have to name two common points. So first question का common point is this point O, and in second question the common point is OQ, ठीक है। OQ are the common points in question number 2. Is that clear? Now we are moving to another question in which we have to mark 3 points in common. We have to mark 3 points in common. Question number 3 I am taking in part C. So let us draw the figure first. Who is this? Please mute yourself. This is the second ray and let this be the third ray. ठीक है, mark the arrows like this. Name the points. The O, A. This is point B. Let this be C and this be D. Okay. तो अगर हम यहाँ पे दो एंगल्स ले रहे हैं, एंगल ओ ए डी, फर्स्ट वेन वी विल सी एंगल ओ ए डी, ठीक है। इस एंगल को जब हम लोगों ने लिखा तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमने लिखा? इस एंगल को लिखते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? ओ पॉइंट ए आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। पॉइंट ओ इज कमिंग, पॉइंट सी इज कमिंग एंड पॉइंट डी इज कमिंग। व्हेन वी हैव मार्क्ड एंगल AOD, जब हमने एंगल AOD को मार्क किया तो इस एंगल को बनाने में हमें कितने पॉइंट्स हमारे एंगल के ऊपर आए? हमारे पास पॉइंट A आया, पॉइंट O आया, पॉइंट C आया, पॉइंट D आया। इज दैट क्लियर? हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। जब हम इस एंगल OAOD को बना रहे थे तो हमारे पास एंगल पे 3 पॉइंट्स आए, नेमली पॉइंट A, पॉइंट O, पॉइंट C एंड पॉइंट D। इतना समझ में आया? नेक्स्ट अब हमें ये दूसरा एंगल देखना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल BOA, सॉरी BOD, BOD। AOB, BO, D and BOA। क्लियर? पहले हमने एंगल AOD लिया, वी हैव टेकन एंगल AOD, ठीक है। इसको बनाने के लिए वी हैव यूज्ड द पॉइंट A, पॉइंट O, पॉइंट C एंड पॉइंट D। क्लियर? आई हैव रिटन इट आल्सो टू मेक द एंगल AOD वी हैव यूज्ड द पॉइंट A, पॉइंट O, पॉइंट C एंड पॉइंट D। अब हमने ये दूसरा एंगल लिया है, ये वाला एंगल, दिस पार्ट। यहाँ पे हमने कैसे एंगल लिया? एंगल BOD। वी हैव टेकन एंगल BOD। अब BOD को बनाने के कौन कौन से पार्ट यूज हुए? हमने पहले सबसे पहले पॉइंट B को यूज किया, फिर हमारे पास पॉइंट O आया, देन वी हैव पॉइंट C, देन पॉइंट
डी। ठीक है, दोनों एंगल्स को मैंने लिख दिया है। एंगल ए ओ डी में ये पॉइंट्स यूज हुए हैं, एंगल बी ओ डी में ये पॉइंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें 3 पॉइंट्स कॉमन बनाना है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ओसीडी और ओसीडी, ये तीनों क्या है, दीज थ्री आर दी 3 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है। अगर एक चीज दोनों में कॉमन होती है देन वी नेम इट एज कॉमन पॉइंट्स। इसमें भी ओसीडी है और इसमें भी ओसीडी है, तो आंसर इसका क्या होगा, पॉइंट ओसीडी आर दी कॉमन पॉइंट्स। पॉइंट ओसीडी जो है वो कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों एंगल्स के। तो कॉमन पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट ओसीडी आर कॉमन, पॉइंट ओसीडी आर कॉमन, पॉइंट OCD are common points. These are what? These are the common points of these two angles. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि हमें 3 कॉमन पॉइंट्स बताने हैं दो एंगल्स के बीच में। तो हमने एक फिगर ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, हमने ये पहले एंगल ए को लिया, इस पार्ट को लिया। ठीक है, इस पार्ट को एंगल एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी को फॉर्म करने के लिए वी हैव यूज्ड पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द एंगल बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी, बी ओ डी को बनाने के लिए बी यूज हुआ सबसे पहले, देन ओ यूज हुआ, देन सी एंड देन डी। दीज 4 पॉइंट्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंगल बी ओ डी। तो अब हमने जब मैच किया तो वी कैन क्लियरली सी दैट ओसीडी जो है वो यहाँ पे भी है, OCD जो है वो यहाँ पे भी है। तो but we can say that point OCD are common in these two angles. So 3 common points in these two angles are angle O, angle C and angle D. Is that clear? Now moving on to the another part of the question, that is part 4. Mute yourself beta. Part 4. We are taking the part 4. The part 4 of the question is saying that 4 points in common. Same figure, आप 4 points in common. हम बार बार वही सेम फिगर लेने क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, वी आर मेकिंग द सेम फिगर अगेन, बट इस बार क्या करेंगे, वी विल मार्क 4 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, दिस वाज आवर फिगर, मार्क द रेज। जिस तरह से बेटा मैं फर्स्टली फिगर को ड्रॉ करती हूँ, देन आई मार्क द एरो, देन आई नेम द पॉइंट, सेम वेज आपको भी अपनी कॉपी में करना। डोंट फॉरगेट टू पुट दीज एरोज एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट O and A, this is point B, this is point C. Here we have point D and let's say this is point E. So these are the points which we have marked on the ray OB. Now we will see the angle, how the angle is forming. ठीक है, so first we will be taking angle AOB. We are taking angle AOB. जैसा कि कल मैंने बताया था, जो ये वर्टेक्स कोने वाला पार्ट है इसको आपको हमेशा बीच में रखना है। O should always be in between. एंगल दिखाने के लिए जो ये O वाला पार्ट है इसको आप हमेशा बीच में रखोगे। तो वी आर टेकिंग एंगल AOB फर्स्ट। हम एंगल AOB को देख रहे हैं सबसे पहले। इस एंगल को बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स यूज हुए हैं? पॉइंट A यूज हुआ है, पॉइंट O यूज हुआ है, पॉइंट C, D और B। ये सारे पॉइंट्स एंगल के रीजन पे आ रहे हैं। कल हमने पॉइंट्स पढ़े थे इंटीरियर पे आते हैं, जो पॉइंट्स इस रीजन में आएंगे जो वो पॉइंट्स इंटीरियर में होंगे, और जो पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे दैट विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ द एंगल। तो AO, पॉइंट E, पॉइंट D और पॉइंट B, ये सारे पॉइंट्स एंगल A, O और B में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। कौन से पॉइंट? एंगल पॉइंट A, point O, point E, point D and point B. You can clearly see from the diagram all these points are included. All these points are included when we have drawn the diagram. Now हम दूसरा एंगल लेंगे, we will take angle COB. ठीक है, एंगल COB,
सेम वेज इस COB एंगल को बनाने में, इस एंगल COB को बनाने में कौन कौन से पॉइंट यूज हुए हैं? पॉइंट C, पॉइंट O, पॉइंट E, पॉइंट D and point B. All these points are used in making of the angle COB, or we can say that all these points are lying on the angle, on the rays which are forming ray. Angle कहाँ पे बन रहा है? Angle this is this, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। कौन सी रेज बना रही है? रे OB और रे OC से मिलकर हमें एंगल COB मिल रहा है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? पॉइंट C, पॉइंट O, पॉइंट E, पॉइंट D. दिस इज पॉइंट D, ठीक है। This is point D, and lastly we have point B. All these points are lying on this angle, ठीक है। अब हमें four common points ढूंढने हैं, तो four common points. What are the four common points? Here we can clearly see that OEDB is here also in formation of angle AOB, and OED is here also in formation of angle COB. AOB एंगल को बनाने के लिए भी हमें ये सारे पॉइंट्स हमने यूज किए थे, पॉइंट O, पॉइंट E, पॉइंट D, और पॉइंट COB को भी बनाने के लिए we have used point O, point E, point D and point B. So we can say that all these four points are common, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? these four points are तो common. So the four points which we have common are these four common points are point O, E, D or B. Is that clear? In this question we were asked to mark the four common points between the two angles. तो हमने क्वेश्चन में पहला एंगल लिया, एंगल O, एंगल A, एंगल B. ये पहला एंगल लिया, इसमें जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे थे हमने सबको लिखा। We have written all the points, point A, point O, point E and point D and B, ठीक है। इन सारे पॉइंट से मिलकर हमारा एंगल AOB बन रहा था। फिर हमने COB किन किन रेज से बन रहा है? CO is being made with रेज OC और OB से मिलकर ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? पॉइंट C, O, E, D and B. These five points are lying on the angle COB. Now we have to choose the common point. तो आप देख रहे हो O, E, B, ये पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो जो चीज दोनों में सेम है, that is called as what? That is called as common. So we have clearly these four points as common in these two angles. Is that clear? Now we have the last part of the question. I am taking the same figure in all these questions because so that it gets more clear to you. वरना आप फिगर को अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो, but concept should be clear, ठीक है। पॉइंट्स को आपको मार्क करना, this you have to learn and it should be very much clear to you, ठीक है। So आप at your home आप बेटा randomly questions लेके भी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें कौन सा पॉइंट कहाँ पे मार्क करना है। पार्ट E, last part we are taking. Last part में the question is asking that one ray in common. हमें एक ऐसा रफ डायग्राम बनाना है दो एंगल्स का जिसमें एक रे कॉमन हो। Then again we will take the same diagram. This is the first ray. This is the second ray. And let this be the third ray. ठीक है। The second most important thing is put the mark of the ray. Then you have to name the ray. Let's say we have named this common point, जो इसका initial point है उसको point O name किया है। OP is the one first ray, OR is the first ray. क्वेश्चन में हमसे इन दोनों एंगल्स के बीच का एक कॉमन रे पूछा गया, तो पहले हम एंगल देख ले। फर्स्ट वी विल टेक दिस एंगल, वी विल टेक एंगल P। O को हमेशा मिडिल में रखेंगे क्योंकि हमारा जो कोना है वर्टेक्स है वो वही फॉर्म हो रहा है, POQ, ठीक है। एंगल POQ कैसे फॉर्म हो रहा है? ये दो रेज हमने ली है, ये हो गया O, ये हो गया P एंड दिस इज पॉइंट Q। तो ये दो रेज, ये आपको दो रेज दिख रही है OP
और ओ क्यू, दीज आर व्हाट, दीज आर टू रेज, दो रेज है जिससे हमें ये एंगल मिल रहा है। तो ये वाली रे और ये वाली रे से मिलकर हमें एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो ओ क्यू यहाँ पे देख लिया हमने ना। इसी ओ क्यू के साथ एक और हमें रे मिल रही है, सॉरी एक और एंगल मिल रहा है इसी ओ क्यू के साथ, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये हो गया O, ये हो गया Q एंड दिस इज R। इसी OQ के साथ बेटा वी आर गेटिंग अनदर एंगल, ये वाला एंगल जो है आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, दिस एंगल, ये हमें कैसे मिल रहा है, रे OR से और रे OQ से, दोनों से हमें एक और एंगल मिल रहा है। तो यानी जो दूसरा एंगल हमने लिया है एंगल ROQ। अगेन हमने पॉइंट O को जो है बीच में रखा है, क्यों, क्योंकि वहीं पे हमारा वर्टेक्स मिल रहा है। तो इसमें आप देखोगे ये जो OQ है वो यहाँ पे भी है, OQ है वो यहाँ पे भी है, और OQ क्वेश्चन में दिख क्या रही है, अगर हम सबको हटा दें, यहाँ से सब सारी चीजों को हटा दें, ठीक है, तो OQ इज एन रे। OQ क्या है, एक रे है, दिस इज O। तो OQ क्वेश्चन में क्या है, एक रे, तो दिस इज एन रे व्हिच इज इन बिटवीन दीज टू एंगल्स। तो कॉमन रे कौन सी हो गई, OQ। कॉमन रे इज व्हाट, कॉमन रे इज OQ। OQ जो है हमारी क्या होगी, कॉमन रे होगी बिटवीन दीज टू एंगल्स। इज दैट क्लियर? I hope this exercise is very much clear to you. If not, then you can ask me in the later WhatsApp session, which is there. Now we are going to study. Yes, ma'am. Okay, okay. Now we are going to study a whole new topic, that is triangles. First we have learned about the curves, then we have learned the polygon. Polygon याद है ना सबको? Simple closed curve which is made up of line segment, ठीक है? A simple closed curve which is made up of line segment. बच्चे एक क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, क्वेश्चन नंबर हमने एक्सरसाइज 4.2 जब सॉल्व की थी, जब हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करें तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें पूछा गया था अ पॉलीगन विद टू साइड्स, ठीक है। इन एक्सरसाइज 4.2 एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो लास्ट पार्ट था सी, उसमें हमसे ये कहा गया था कि पॉलीगन विद टू साइड्स, अ पॉलीगन with two sides, हमें एक पॉलीगन बनाना था जिसकी टू साइड्स, ठीक है। वी हैव टू मेक अ पॉलीगन यूजिंग विद टू साइड्स। तो हमने इसके आंसर में क्या लिखा था कि अ पॉलीगन विद टू साइड इज नॉट पॉसिबल, दो साइड वाला पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। बेटा म्यूट योरसेल्फ। अ पॉलीगन विद टू साइड्स इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पॉलीगन होता है इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल है, क्लोज्ड भी है और एक कर्व भी है। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। सिंपल मतलब सिंपल कर्व वो होते हैं जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते, क्लोज्ड वो होते हैं कि इनके एंड पॉइंट्स मीट करने चाहिए, दे शुड नॉट हैव एनी ओपनिंग। जब हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया था तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा था कि ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसमें दो साइड्स हो। क्यों? या तो आप दो साइड्स को ऐसे लोगे, ठीक है, या आप दो साइड्स को ऐसे लोगे, ये कहीं पे भी जाके क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे भी ओपनिंग है, यहाँ पे भी ओपनिंग है। सो जब ये क्लोज ही नहीं हुआ तो ये पॉलीगन भी नहीं हुआ। बट ट्राइंगल जो है वो ऐसा पॉलीगन है जिसकी सबसे कम साइड्स होती है। ट्राइंगल में वी ऑल नो दैट ट्राइंगल हैव 3 साइड्स, तो ट्राइंगल ही एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम साइड्स होती है, ठीक है। दो लाइन से हमें एक पॉलीगन नहीं मिल रहा था, लेकिन सपोज हमने जब ये एक लाइन ली और ये एक लाइन ली, ठीक है, इनसे पॉलीगन फॉर्म नहीं हो रहा था, तब हमने क्या किया, हमने एक तीसरी लाइन को ऐसे जोड़ा, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, triangle. So triangle is what? Triangle is the polygon with 3 sides. Triangle is a polygon with the 3 sides. ठीक है? This is what? This is a triangle. A triangle is a polygon with 3 sides. Triangle. This is what? This is a triangle. You must have seen this shape also
बिफोर, ठीक है, आपने ये शेप पहले भी देखी है और इसके बारे में बेसिक बेसिक पढ़ा भी है। तो ट्रायंगल कितनी साइड से मिलकर बना होता है? ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में? 3 साइड्स। अगर हम इसे पॉइंट ए बोले, इसे पॉइंट बी बोले या इसे पॉइंट सी बोले, सो हाउ मेनी साइड्स अ ट्रायंगल हैज? ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। 3 साइड से मिलकर ये बना है ए बी, बी सी और सी ए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बी सी सी बी और सी ए। और इसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। A triangle has 3 sides and 3 angles, angle A, angle B or angle C. This is angle A, this is angle B and this is angle C. इतना क्लियर है? A triangle is a polygon made up of 3 sides. कौन सी साइड्स है? ए बी, बी सी और सी। 3 एंगल्स इसमें होते हैं, 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स होंगे। इस रे से और इस रे से मिलकर बना है ये एंगल। By this ray and this side, this angle is formed। इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से ये वाला एंगल फॉर्म हुआ है। तो a triangle has 3 sides and 3 angles। अगर आपसे कोई ट्रायंगल की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल इज दैट a triangle is a polygon which is made up of 3 sides। A triangle is a polygon made up of 3 sides and it has 3 angles। This is all what you should know about the triangle। Now, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल के पॉइंट्स यहाँ पे हो, ठीक है, ये अगर मान लो P है, ये Q है, तो P और Q क्या होंगे? आर point P and Q are internal points on the interior side of the triangle। Points P and Q are interior points। ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं तो they are what? They are interior points। जो points, those points which are formed inside the triangle, they are what? They are interior points। अगर मैंने कोई यहाँ पे point ले लिया, point D is here, ठीक है, point E, तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉइंट डी और पॉइंट ई जो है वो ट्रायंगल की बाउंड्री के बाहर है। तो क्या जो पॉइंट बाउंड्री के बाहर है वी इंक्लूड इन दैट ऑल दोस पॉइंट्स इन द ट्रायंगल? नो। व्हाई? बिकॉज़ दे आर आउट ऑफ द रीजन। सो पॉइंट डी और पॉइंट ई आर एक्सटीरियर पॉइंट्स। जो रीजन के अंदर हैं दे आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स और जो रीजन के बाहर हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? Let me just quickly revise what is a triangle. Yes, sir. A triangle is a polygon which is made up of 3 sides. A triangle is a polygon which is made up of 3 sides and it has 3 angles। ठीक है, जो points triangle की region के अंदर होंगे that points will be called as interior points and those points which are outside the triangle they will be called as exterior points। ठीक है, so our next exercise is based on these triangle only। We are going to solve our next exercise। मैम आप इसका फिगर भेजिए ना 4. Just mute yourself। Did I ask you to say anything, beta? I'll give you time, no? Maintain discipline। Time and again I am saying it to you। Now we are going to start exercise 4.4। It's a very small exercise, it has only 2 questions। So exercise 4.4 question number 1 we are going to solve। Now the question is saying draw a sketch of triangle ABC। हमें एक triangle ABC बनाना है। This is a triangle। ठीक है, let us name the triangle first। हमें क्वेश्चन में नेमिंग बताई गई है कि हमें उसको ABC मार्क करना है। तो जब आपको ABC मार्क करने के लिए कह दिया जाए तो यू विल नॉट मार्क इट एज PQR और SRT। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So in this question we are given a triangle ABC and we have named the 3 points ABC as A point, point B and point C। Next क्वेश्चन में ये कहा है कि मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। P पॉइंट को हमें ट्रायंगल के इंटीरियर में मार्क करना है। दिस पॉइंट इज लाइक इनसाइड द रीजन ऑफ द ट्रायंगल, हेंस इट इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, एंड वी हैव टू मार्क पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर। पॉइंट Q को आपको ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर में मार्क करना है।
is the point A in its exterior or in its interior? So point A is in, जो पॉइंट बाउंड्री में लाई करते हैं उनको भी हम लोग इंटीरियर ऑफ द रीजन कहते हैं. दोज पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द बाउंड्री, इनको भी हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ट्रायंगल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, इनसाइड लाई नहीं कर रहा, आउटसाइड लाई नहीं कर रहा. ये पॉइंट कहाँ है? ट्रायंगल की बाउंड्री क्या होती है? किनारा ये है. ठीक है, और पॉइंट ए जो है वो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो ये ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है. दिस पॉइंट ए इज लाइंग ऑन दी बाउंड्री. तो यहाँ पे पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट ए बेटा बाउंड्री पे है. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता कि इस पॉइंट ए इन द रीजन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तब आप आंसर यस लिखते, क्योंकि ये रीजन को हमने कैसे डिफाइन किया था? रीजन में कौन से पॉइंट आएंगे? जो इंटीरियर होंगे और जो बाउंड्री पे होंगे. तो पॉइंट पी जो है वो ट्रायंगल के रीजन में है और पॉइंट ए भी ट्रायंगल के रीजन में. लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि पॉइंट ए इंटीरियर है कि एक्सटीरियर. तो पॉइंट ए ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, ये पॉइंट बाउंड्री पे है. तो पॉइंट P है इंटीरियर, पॉइंट P इज इंटीरियर, पॉइंट Q इज एक्सटीरियर. ओके, एंड पॉइंट A इज नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, इट इज ऑन दी बाउंड्री. नीदर इंटीरियर, ना तो इंटीरियर है, नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, इट इज लाइंग ऑन दी boundary. Neither interior nor exterior, it is lying where? It is lying on the boundary. यहाँ bracket में you can write on the boundary. Okay, so we have point A inside the triangle, that is why it is called as interior point. We have point Q outside the triangle, that is why it is called as exterior point. The third point is point A, which is neither interior nor exterior, it is on the boundary of the triangle. ठीक है, अगर क्वेश्चन में रीजन पूछा जाता कि इस पॉइंट A in the region of triangle, then you will write it that the point A is in the regions. Okay, so this is all for now. In our next class we will be taking question number 2 of exercise 4.4. You have to revise this exercise and the PDF of this question, these questions will be provided to you. ठीक है, PDF you will be provided to you like I always do. So don't get panic about that. Okay, you just have to revise the concept. जो भी पढ़ा है, अगर कुछ नहीं आ रहा था then you can ask it to me. Thank you.